Hi everyone, am I audible? Yes, sir. Yes, What is the topic today? So today's topic is also very joshful, you can say, right? So it is. So the today's topic is DSA in real life. DSA in real life. So let us get started. Let me share my screen with you guys. Is my screen visible? I think now you are able to see what is the topic today, guys. What is the topic? Can I know in the chat what is the topic? So the topic today is DSA in real life, right? So DSA, see, I think one question I already also have. How many of you do not understand Hindi? कितने कितने लोग हिंदी समझते ही नहीं है? How many of you do not understand Hindi? Loading? What loading? How many of you do not understand Hindi? No Hindi? Okay. Okay, cool. Cool, cool, cool. I can see majority of you understand Hindi. So बीच बीच में I'll try to speak few words of Hindi, right? If you get it, it's fine. If you don't, just ignore, right? I'll try if I can like, because I have jokes in Hindi only. So English joke I don't have any English joke, so I'll not be able to make that. Cool, awesome. Let's start. So first of all, we'll try to understand DSA in real life. But before that, just wanted to know what is your like understanding about DSA. भाई DSA कितना समझ में आता है? तो let me raise one poll to you and let me know how much do you understand DSA. DSA कितना समझ में आता है? So I think you guys have options here कि भाई मुझे बहुत ही मतलब बस पता है कि DSA होता है कुछ, या फिर आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट, या फिर आई कैन सॉल्व प्रॉब्लम बट इट्स नॉट माई फेवरेट सब्जेक्ट. मतलब कि आ रही है प्रॉब्लम है तो एक दो सॉल्व कर देता हूँ बट मुझे मजा नहीं आता. आई एम प्रिटी सॉलिड. आई कैन सॉल्व प्रॉब्लम इन माई स्लीप. आई एम सो गुड, आई ड्रीम ऑफ एल्गोरिथम्स. मुझे सपने में एल्गोरिथम्स आ जाते हैं. जैसे न्यूटन को सिर पे गिरने से वो समझ में आ गई ग्रेविटी, वैसे ही मुझे वैसा मेरा केस है. तो विच फेज यू आर इन? ओके, आई कैन सी मैक्सिमम ऑफ यू आर स्टिल फिगरिंग इट आउट. ओके, what else? Sure, Abhay, feel free to do. Sure, Abhay, feel free to do. Abhay is asking, can I submit this link to my friends? Yes, you can submit, guys. You can. Feel free यार. बस देखो, दूसरों को अगर मोटिव अच्छा होना चाहिए यार, just do whatever it takes to do. अगर किसी मतलब if your action gives you that thrill, if action is a good action, feel free to do that. Okay. So I think I have got the pulse. I can share that pulse with you as well. So what many people have answered here. Many people have answered this. So there are many students who barely understand DSA. That's also fine because it's its part, right? So you cannot understand everything, right? There are few students who are trying to figure out. There are student की भाई बस एक दो कुछ पांच सात प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं हम, पर हमारा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है. There are students who are saying they are pretty solid. There are few students who are saying कि I dream of algorithms, right? कि मुझे सपनों में algorithms आ जाती हैं, right? So just wanted to tell you. So the same situation was with Ramanujam as well. So when one asked with the Ramanujam, how many of you know Ramanujam? How many of you know Ramanujam? Me? Okay. So Ramanujam was great Indian mathematician. तो एक बार उनसे पूछा गया कि he was asked one कि how you get these mathematical formulas, how you able to relate that, and he says that uh, like in he says that ki I just got I just get that, right? How I get that? uh, goddess goddess Saraswati gave me that. So he used to say that, right? so तो जब ऐसा भाई आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हो तो वो केस बन जाता है कि जब आपको मतलब ऐसा लगता है कि आपके सपने में ही सारी एल्गोरिथम्स आ जा रही हैं. तो इफ दिस इज द केस, इट्स ऑसम, राइट? Cool, awesome. So let's start. So before going ahead, just okay, I think I have the basic idea. So we'll start with very basic part. We'll start with very basic part. So this is a question that was also asked by me in one of my interview, and I used to tell them कि I teach DSA to the students, right? And one interviewer asked me, "Hey, can you explain me DSA in layman term? कैन यू एक्सप्लेन मी डीएसए इन लेमैन टर्म?" देखो अब डीएसए अपने को पढ़ना है. डीएसए इंपॉर्टेंट है. कैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, विल लर्न. पर लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज डीएसए. आर वी गाइस क्लियर? आर वी गाइस क्लियर? Yes. So the first thing that we're going to learn is what is DSA.
right? So to understand this, like I'm just trying to answer you how to explain DSA in layman term, कि भाई बिल्कुल layman term में DSA कैसे किसको समझाओगे. ठीक है, तो एक बार आप सोचो. I'm giving you 2 minutes, just think about it and let me know how will you do that. How will you explain someone DSA in very very layman term? कैसे समझाओगे? So okay, I think many of you have thought. Cool, cool, cool. So how I will explain, I'll try to do. So how many of you have seen dictionary? How many of you have seen dictionary? किस किसने डिक्शनरी को देखा है? How many of you have seen dictionary? किस किसने डिक्शनरी में देखा? इन पाइथन नहीं भाई, पाइथन अभी लैंग्वेज में घुस गए. डिक्शनरी, डिक्शनरी मीन्स देयर इज वन बुक where which you use to check the meaning of a word. किस किसने देखा है? किस किसने डिक्शनरी खोली थी, किसी को कोई वर्ड चाहिए होता था तो he used to open that dictionary and try to find that word. How many of you have done that? How many of you have done that? राइट, काफी लोगों ने किया. ऑसम है. तो अब ये बताओ कि डिक्शनरी में होता क्या था? व्हाट वी यूज्ड टू हैव द इन डिक्शनरी, व्हाट वी यूज्ड टू हैव इन डिक्शनरी. डिक्शनरी में क्या होता था? डिक्शनरी में हमारे पास डेटा होता था, एंड डेटा इन फॉर्म ऑफ सम वर्ड्स एंड मीनिंग. डू वी एग्री? डू वी एग्री? कुछ इस तरह से होता था. यस, नो? यस, यस. नाउ थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट. दिस इज सम डेटा. वॉज इट स्ट्रक्चर्ड? वॉज दिस डेटा स्ट्रक्चर्ड? क्या ये किसी मैनर में स्ट्रक्चर्ड था? वॉज दिस डेटा स्ट्रक्चर्ड? वॉज दिस डेटा स्ट्रक्चर्ड? The answer is, the answer is yes. This data was structured in alphabetical order. Right? सबसे पहले ए के वर्ड आते थे, फिर बी के आते थे, फिर सी के आते थे, फिर डी के आते थे. ऐसे सबके आते रहते थे. डू वी अग्री? डू वी अग्री? So data was structured in alphabetical manner. Can I say this? Right? अब ये सोचो कि अगर ये डेटा अल्फाबेटिकल मैनर में नहीं होता तो कितना टाइम लगता किसी भी वर्ड को सर्च करने में? बहुत टाइम लग जाता. राइट? सोचो, सोचो. यस. सोचो कि ये जो डेटा है, इफ दिस डेटा इज नॉट स्ट्रक्चर्ड, कितना टाइम लगेगा भाई? दिमाग खराब हो जाएगा. राइट? एक वर्ड सर्च करने जाओगे, एक वर्ड मान लो हर्षिता सर्च करने जाओगे तो हर्षिता से वर्ड ही नहीं सर्च होगा भाई पूरे उसमें. राइट? 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 तो here what is happening, here what is happening, this is DSA, right? This is DSA. Here this word and meaning, there, here the data in a dictionary is structured in a manner so that you can search anything very efficiently, so that you can search anything very efficiently. Do we agree? Yes, no? Yes, no? This is what data structure do, right? Now think about it. I'll take this example again and again. Do you guys know why Google is Google? Right? We know there are multiple search engines. Can you name me few? कुछ मुझे नाम बताओगे क्या? कुछ इनके सर्च इंजन्स के? क्या मुझे नाम बताओगे कुछ सर्च इंजन्स के? क्या नाम बताओगे क्या? राइट?
DuckDuckGo, Bing, Yahoo. Firefox is not. Somebody saying Firefox a search engine? No. Mozilla is not a search engine, right? But why we use Google? Why we use Google? Because it has very awesome data structures used. They have very good algorithms, right? Yes, this is what we have heard. They have awesome algorithm. That is why they are able to give best result, right? And how they are able to give the best result? Because of data structures they use. The better data structure you use, the more effective you become. Do we agree? Do we agree? Are we guys clear? What is data structure? Are we guys clear? What is data structure? सबको clear है? So data structure is a way to manage the data so that you can make anything very efficient. You can make some query very efficient. It can be add query, it can be search query, it can be any query, right? Do we agree? Yes, yes. तो क्या डेफिनेशन हुई डेटा स्ट्रक्चर की? क्या डेफिनेशन हुई? Data structures provide the method to store the data and use it effectively. Do we agree? Do we agree? Agree? किसके को क्लियर है? किसके को क्लियर है? हर एक वर्ड क्लियर होना चाहिए भाई. भाई चैट में यार थोड़ी एनर्जी दिखाओ. आई कैन नॉट सी द प्रॉपर एनर्जी गाइस. क्या हुआ? कहाँ एनर्जी है आपकी? हाउस द एनर्जी? हाउस द जोश? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस हाउ मच? यस. ओके, ऑसम. तो देखो डेटा स्ट्रक्चर अगर क्लियर है कि क्या होता है, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई डू वी स्टडी इट. व्हाई डू वी स्टडी इट? क्यों पढ़ना है? क्यों पढ़ना है? बताओ. डेटा स्ट्रक्चर क्यों पढ़ना है? वन इज पैसा ही पैसा, राइट? पैसा ही पैसा, राइट? राइट, फर्स्ट रीजन पैसा ही पैसा. बट डू यू फील इट शुड बी द अल्टीमेट रीजन टू स्टडी? डू यू फील इट इज द अल्टीमेट रीजन टू स्टडी? अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, ओके. सी, so one thing we really believe at Geekster में एक चीज जो हम बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं कि वी वांट यू टू फोकस ऑन, करियर, नॉट जॉब. राइट? एट Geekster वी वांट यू टू फोकस ऑन योर करियर, नॉट जॉब. देखो जॉब तो भाई आती जाती रहती है, पर बताओ करियर जो बनता है ना भाई, वो लॉन्ग टर्म होता है. डू वी अग्री? डू वी अग्री? यस, नो, थम्स अप. यस. और भाई करियर कैसे बनेगा? हाउ विल यू गाइस बी एबल टू फॉर्म अ करियर? when your fundamentals will be strong. Do we agree? Do we agree? करियर कैसे बनेगा? जब आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे. व्हाट डू वी मीन बाय फंडामेंटल्स? देखो बहुत सारे बच्चे मेरे पास आके कहते हैं कि सर मैं ना मर्न सीखना चाहता हूँ, मैं रिएक्ट सीखना चाहता हूँ, मैं एंगुलर सीखना चाहता हूँ, मैं डेटा साइंस सीखना चाहता हूँ, मेरे को मशीन लर्निंग सीखनी है सर, मुझे चैट जीपीटी बनाना है. तो people come to me and say these words, right? And I ask very simple thing कि hey, do you know DSA? And usually do you know what is his answer? आपको पता है क्या उसका आंसर क्या होता है? क्या होता होगा आप बताएं. Their answer is no. Their answer is no. This is the problem, right? This is the problem. See, I have worked on MERN, I have worked on data science, I have worked on machine learning, I have created some neural networks that are like not chat GPT exactly, but they are very, very good neural networks. But one thing that I had, why I was able to do so much of things, is because I had very, very clear basics. I had very, very good fundamentals.
दैट इज वाई यू आर एबल टू डू, राइट। जैसे कि मशीन लर्निंग के अंदर भी न्यूरल नेटवर्क के अंदर बहुत सारी एल्गोरिथम्स यूज होती है, राइट। वन ऑफ द एल्गोरिथम इज ग्रेडियंट डिसेंट, राइट। So there's going to be multiple algorithm if you get in any of the depth. तो आपको रियलाइज होगा कुछ ना कुछ यूज होता ही रहता है एंड अल्टीमेटली यू हैव टू लर्न डीएसए बिकॉज दे आर फंडामेंटल, दे विल गिव यू द पावर कि भाई किस तरह से कोड लिखा जाना चाहिए। आर वी गाइस गेटिंग इट? आर वी गाइस गेटिंग इट? तो इफ यू वांट टू लर्न एनी ऑफ दिस थिंग, राइट, अगर आपको वेब डेवलपमेंट सीखनी है, राइट, तो मैं आपको वेब डेवलपमेंट का एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो वेब डेवलपमेंट डीएसए यूज कहाँ पे आएगा, आई जस्ट ट्राई टू गिव यू द इंस्टेंस। सो इज माय स्क्रीन विजिबल? लेट मी ओपन द क्रोम। तो यहाँ पे मैं किसी भी वेबसाइट पे जाता हूँ, देखो किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाता हूँ, लेट्स से फ्लिपकार्ट पे चलते हैं। तो इन फ्लिपकार्ट इफ आई चेक एनी ऑफ द प्रोडक्ट, राइट, just give me a second, let me go and search for some product, right, let me go and search for mobile. So you can see, can you see this categories कि भाई आपको किस प्राइस रेंज का चाहिए? My screen is visible, right? Yes. फिर इसके बाद ये दिखा रहा है भाई कौन से ब्रांड का चाहिए, फिर चेक करना है कि क्या जीएसटी अवेलेबल है या नहीं है। You can see there are lot of filters. Can you see this? Can you see this? इतने फिल्टर्स हैं और ये सारे फिल्टर एक के ऊपर लगते जाएंगे and based on that filtration you have to give the result. अभी बताओ कि will what क्या how will we will be able to do this task efficiently? ये टास्क कैसे कर पाएंगे efficiently? How will we be able to do this efficiently? कैसे होगा? कैसे होगा जल्दी बता दो। हैश टेबल डीएसए करेक्ट। द आंसर इज, व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज डीएसए। तो अगर मर्ज स्टैक भी सीखना है, करेक्ट, डेटा को अच्छे से स्टोर करना पड़ेगा, देन ओनली विल बी एबल टू गिव द बेस्ट रिजल्ट ना, अदरवाइज हाउ वी विल गिव इट? सो we need what? We need DSA to understand even the MERN stack. Do we agree? किसी को मशीन लर्निंग पढ़नी है तो भी वहां पे क्या जरूरत है भाई, इतनी सारी एल्गोरिथम्स आएंगे, इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर्स आएंगे, यू विल से कि भाई पढ़ा दो मुझे, पढ़ा दो, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांटेड टू नो अंडरस्टैंड, देयर इज वन कॉन्सेप्ट कॉल्ड न्यूरल नेट. These neural nets are nothing but kind of a graph, right, which is a data structure, nothing. So you have to understand what? You have to understand what? Data structures. You have to make sure your fundamentals are good enough. Are we guys clear? Clear by what and why are clear? So what part is, what is the data structures? I hope this is clear. And why data structure? This is also clear. Yes, no. Yes, no, guys. How's the Josh? I can see very few people interacting. देखो एक चीज आपको करनी पड़ेगी भाई, एक चीज आपको करनी पड़ेगी कि हैव लाइक सी, देखो एक चीज आप मानोगे कि यार मेरी मम्मी एक बात कहती है मुझे कि जैसे सुबह सुबह जब मैं नहीं उठ रहा होता तो शी यूज्ड टू कम टू माय बेड एंड से कि भाई देख, सोए हुए को जगा सकते हैं पर उठे हुए को कैसे जगाओगे, राइट। तो अगर आप तो मतलब ऐसे माइंड से ऐसे बिल्कुल क्लियर नहीं होगे कि भाई मुझे पढ़ना है, तब तक कोई भी नहीं पढ़ा सकता आपको यार। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, सो बी क्लियर विद योर थॉट कि हाँ यू वांटेड टू लर्न, इफ यू आर नॉट क्यूरियस इनफ नोबडी कैन टीच यू। आर वी गाइस क्लियर? आर वी गाइस क्लियर? शुड वी मूव? Now the next question is where this data structure is used. Where this data structure is used. So this was actually we are coming to our main topic here. Where this data structure is used. So point number one, where this data structure is used. So this data structured, for example, how many of you are aware of few data structure? Can you name me some data structure? पहले सबसे पहले कुछ मुझे नाम बता दो डेटा स्ट्रक्चर जो आपको पता है।
ओहो भाई 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 भाई, थोड़े बड़े बड़े आ गए, अच्छे अच्छे आ गए। अरे ट्री, हैश मैप, क्यू, लिंक लिस्ट, ओके। What else? Sorting, searching. These are algorithms. Nice. Array, stack, linked list, graph. Okay. Awesome. 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 Acha, how many of you know what is array? Let's start with the array. Let's start with array. How many of you know what is array? How many of you know what is array? देखो एक चीज याद रखना, बोलना कि आता है या नहीं आता है, मतलब इट इज इम्पोर्टेंट टू स्पीक। इट्स इम्पोर्टेंट टू स्पीक। अगर आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो भी बोलो भाई नहीं आता है। राइट, दिस इज इम्पोर्टेंट टू डू। ओके ऑसम, मैक्सिमम लोगों को आता है। ओके कूल। तो अगर अरे आता है तो मैं मान के चल रहा हूँ 2D अरे भी आता होगा। जी, तो 2D अरे, हैव यू एवर थॉट वेयर दिस 2D अरे इज यूज्ड? हैव यू एवर थॉट वेयर दिस 2D अरे इज यूज्ड? ये 2D अरे कहाँ यूज होता है? ओके ओके, आई कैन सी वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। ओके ओके, चलो। सो विल लेट स्टार्ट विद वेरी बेसिक एग्जांपल। आप इमेज देखते हो ना भाई? इमेज देखते हो? मान लो एक मोनालिसा बनी हुई है यहाँ पे। हैव यू सीन दिस मोनालिसा पेंटिंग डिजिटली? कोई बात नहीं, नहीं देखी, कोई भी तो इमेज देखी होगी अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक्चर देखी है? ऐसी दिखती होगी भाई, देखना एक बार। ऐसी दिखती है क्या आपकी इंस्टाग्राम की पिक्चर? नहीं? अच्छा, बेटर दिखती है। मेरी ऐसी दिखती है यार, क्या करे। ठीक है। तो हाउ हाउ दिस पिक्चर इज एक्चुअली, मतलब हाउ दिस पिक्चर इज स्टोर्ड, हाउ दिस डेटा इज स्टोर्ड। If you have if you have any image, how this image is stored, how this image is stored, किस तरह से इमेज स्टोर्ड है? किस तरह से इमेज स्टोर्ड है? जस्ट जस्ट थिंक अबाउट इट। हाउ दिस इमेज इज स्टोर्ड, कैसे स्टोर्ड है इमेज? अरे ऑफ पिक्सल, डायमेंशंस, करेक्ट 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 करेक्ट। और ओके, 0 1, ओके। थोड़ा सा और हाउ दिस इमेज इज स्टोर्ड? So consist of every image is actually consist of pixels. Have you heard this word called pixel? किस किसने सुना है ये पिक्सल वर्ड? किस किसने सुना है ये पिक्सल वर्ड? ओके, काफी लोगों ने सुना है, ऑसम। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस पिक्सल। राइट, लेट मी पेस्ट वन पिक्चर, कैन यू सी दिस? कि भाई हर एक इमेज जो है ना वो छोटे छोटे डब्बों में डिवाइड की जा सकती है। कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? एक डब्बा है, एक और डब्बा है, एक और डब्बा है, एक और डब्बा है, एक और डब्बा है। और हर डब्बे को एक कलर दिया जा सकता है। आर वी गाइस क्लियर? आर वी गाइस क्लियर? अब ये सोचो कि कुछ भी नहीं है, क्या ये 2D अरे नहीं है क्या? क्या ये 2D अरे नहीं है? ये 2D अरे तो है, मैट्रिक्स ही तो है। एंड ईच मैट्रिक्स, मतलब लाइक ईच बॉक्स और ईच सेल ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट व्हाट कलर इट इज। थिंक अबाउट इट। ये इमेज ही तो है, और इमेज कुछ भी नहीं है, ये तो टू एक मैट्रिक्स है। एंड इन मैट्रिक्स वी, एट एवरी सेल, व्हाट वी आर रिप्रेजेंटिंग, वी आर रिप्रेजेंटिंग अ कलर। कैन यू सी दिस? सबको दिख रहा है क्या ये? सबको दिख रहा है? यस, नो? यस, नो? तो कैन आई से दिस?
2D arrays used in this digital images, right? Where the image is 2D array and each cell is actually nothing but one pixel, right? And this pixel just only talk about colors, right? Are you guys getting it? जैसे कि यहाँ पे इसके बॉक्स का कलर है RGB में रेड 100, ग्रीन 52 and blue 3, right? Yes, yes. Are you guys getting it? See how awesome use of 2D array. How awesome this is. Yes. How many of you agree? How many of you agree? Cool. अच्छा, can you give me more examples? Can you give me more examples? और examples बता सकते हो क्या? What are other examples where 2D array is used or can be used? जल्दी से बता दो. कार्टून एनिमेशन, ओके, दैट्स ऑसम. एमएल मॉडल्स, ऑसम. और थोड़ा आसान सोचो ना यार, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ऑसम. बट थोड़ा सिंपल सोचो, थोड़ा सिंपल जो आपको दिखता हो रियल वर्ल्ड में. ये तो थोड़ी वैसी चीजें हैं जो हमने थ्योरेटिकली पढ़ ली हैं. क्यूआर कोड, ऑसम. भाई क्यूआर कोड भी तो 2D आ रही है, सोचो. राइट, राइट. यस, नो. करेक्ट, बार कोड भाई. अच्छा, एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल आया है. कभी किसी ने पेटीएम पे या फिर किसी भी साइट पे ये बुक किया है, सीट बुक की है? have you booked the seats on Paytm or something like that? वहां पे आपको क्या दिखाता है? वहां पे आपको एक 2D अरे तो दिखाता है कि भाई दिस इज व्हाट द सीट्स अरेंजमेंट इज. तो सीट अरेंजमेंट को डिपिक्ट करने के लिए व्हाट इज बीइंग यूज्ड? राइट, व्हाट इज यूज्ड? 2D अरे. आर वी गाइस गेटिंग इट? आर वी गाइस गेटिंग इट? तो सी वन थिंग वी रियली डू इज कि हम पढ़ लेते हैं चीजों को, और पढ़ के हमें लगता है कि ये थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल है और हम उसको भूल जाते हैं. बट ऑलवेज ट्राई टू थिंक विद वन अदर पर्सपेक्टिव कि यार ये यूज कहाँ पे होता होगा, या फिर ये यूज कहाँ हो सकता है. आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा चीजों को लेके, जैसे आज हो रहा है. आई थिंक थोड़ा बहुत आ रहा है, फर्क आ रहा है. लग रहा है कि कहाँ कहाँ पे यार ये 2D अरे सिंपल सी चीज है और कहाँ कहाँ पे यूज होती है. आर यू गाइस गेटिंग इट? आर वी गाइस गेटिंग इट? Okay, okay. I can understand. I'll just try to explain you what is array. Cool, that is fine. Are we guys getting it? Are we guys getting it? समझ में आ रहा है क्या? दिमाग में घुस रहा है? क्रिस्टल क्लियर, ऑसम. ठीक है, एक बार फिर से पोल रेज करता हूँ, जल्दी से बताओ, हाउस द जोश? Okay, stop sharing. How can I? Okay, hi. How's the Josh, guys? Hi plus plus or hi plus 3000. How's the Josh? How's the Josh? Okay, I can see less energy here. Guys, we are 130, 130, 140 people, right? I want everybody to answer this. Hi infinity, awesome, bhai. Hi equals to int max, awesome, Sheikh. Awesome, awesome, awesome. Okay. देखो यार, चीजें एक होती है, मैं आपको बताता हूँ. देखो, देर आर फ्यू पीपल हु विल बी जस्ट सिटिंग एंड सीइंग एंड जजिंग पीपल कि भाई ये बंदे कैसे पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, क्यों पढ़ाता है. एंड देयर विल बी वन स्टूडेंट हु विल बी मोर इंटरेस्टेड भाई कैसे पढ़ाता है, मैं पढ़ूंगा और मैं मस्त पढ़ूंगा. Right? So I think you guys can be in the second part where don't judge anything, don't think कि भाई क्या होगा कैसे होगा, just try to be yourself, just try to learn, just try to grasp what I'm saying, right? And believe me, you'll start falling in love कि भाई कितनी awesome चीज है ये DSA, right?
my target is not to sell anything, my target is not to मतलब take anything from you. My target is to just you enjoy this 1.5 hours so that you go after this ना, you'll feel कि I've learned something, कुछ सीख लिया, कुछ नया सीख लिया और मजा आ गया, राइट? तो वो चीज चाहिए तो, राइट? आई थिंक लेट्स लर्न इट, राइट? लेट्स लर्न इट. आर वी गाइस क्लियर? आर वी गाइस क्लियर? Cool, awesome. Let's go ahead. Let's go ahead. I think my screen is still visible. My screen is still visible. तो ये बात हमने कर ली अरे की, ठीक है? Now let's move ahead one step ahead. Let's move one step ahead, and the step is we'll talk about few more data structures. Right? Let's talk about few more data structures. अच्छा, 2D array की बात कर ली. Let's talk about 1D array. अच्छा, let's talk about array. How many of you know what is array? Let's talk about what is array. Array क्या होता है? Let's talk about what is array. Array क्या होता है? So somebody was asking, there are few people who do not know array. तो अब ये आपके ऊपर चैलेंज है. I'm giving you guys challenge. Explain array in layman terms. Explain array in layman terms. कि भाई ऐसे मुझे अरे को समझा दो जैसे अपनी नानी दादी को समझाओगे और उनको समझ में आ जाएगी ना, वैसे मुझे समझा दो. यार ये तो डेफिनेशन बोल रहे हो गाइस. देखो, अपने को डिफरेंट बनना पड़ेगा ना, थोड़ा सा दुनिया से डिफरेंट चलना पड़ेगा. और वो कैसे चलेंगे? थोड़ा डिफरेंट सोच के चलेंगे, राइट? थोड़ा डिफरेंट सोचो कि अरे को लेमन टर्म्स में किस तरह से समझाऊंगा. अगर मैं अरे को अपने मम्मी पापा को समझाने जाऊंगा तो हाउ हाउ विल आई एक्सप्लेन अरे टू देम? ओके, ओके. Still I feel can be improved. Array is a basket of data. Okay, what else? What else? What else? चलो, I'll try to explain you it in very simple terms. Right? So आपको याद है कि initially when you were in first, second, third, somewhere like that, you had to have one मैथमेटिक्स नोटबुक. मैथ्स की नोटबुक होती है तुम्हारी, जिसमें कुछ इस तरह के बॉक्सेस बने होते थे. डू वी अग्री? डू वी अग्री? हमारी मैथमेटिक नोटबुक्स होती थी. वी यूज टू हैव आवर मैथमेटिक नोटबुक, यस. एंड दैट नोटबुक वाज इन फॉर्मेट लाइक दिस. बहुत छोटे 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 बहुत सारे डब्बे बने. आर वी गाइस क्लियर? आर वी गाइस क्लियर? यस, 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 यस. तो ये जो बहुत सारे छोटे छोटे डब्बे थे, where we used, like we used to like add something here. We used to do some calculation. यहाँ पे मैंने 2 12 लिख दिया, यहाँ 10 लिख दिया, 11 लिख दिया, 1 लिख दिया, 9 लिख दिया, 10 लिख दिया, something like that, right? Yes, yes, yes. सबको याद है? सबको याद है? So in computer as well, everything you will see is nothing but, मतलब in computer as well we have a very big memory, right? बहुत बहुत बड़ी मेमोरी होती है हमारे पास. और उनको आप सोच सकते हो कि these memories are nothing but, can I say this, कि जो बहुत सारी मेमोरीज हैं कंप्यूटर के अंदर, these are nothing but boxes. Do we agree? Do we agree? There are so many boxes and these boxes are nothing but memories. Now I can have these memories in any order. I can have these memory in any order. But if I'm having these memory in consecutive order, अगर मैं मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं कंजिक्यूटिव वे में, 1 2 3 4 5 कंजिक्यूटिव वे में, so that consecutive memory can be called as array. Are we guys clear? Are we guys clear? Are we guys clear?
अच्छा, इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, आपके घर हैं, आपके घर हैं, बहुत सारे घर हैं, मतलब जहाँ पे आप रहते हो। सो इन दिल्ली द थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू सेक्टर, और हर सेक्टर में क्या है, बहुत सारे घर हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 5, हाउस नंबर 6, हाउस नंबर 7, 8, ऐसे बहुत सारे हाउसेज है, राइट? यस, आपके यहाँ पे भी होंगे। यस, नो, लाइन वाइज है। समथिंग लाइक दैट। नाउ लेट्स से यू वांटेड टू बाय फ्यू हाउस, घर आपको कुछ घर आपको बाय करने, हाउ? तो अब आप घर कोई भी या तो रैंडमली ले सकते हो, एक एक ले लिया, एक 8 ले लिया, एक 16 ले लिया, एक 15, 11 ले लिया, राइट? यस, यस, यस। बट द सेकेंड थिंग यू कैन डू, यू कैन से हे आई वांट ऑल द हाउसेज इन कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स। मुझे मेरे घर, मतलब मेरे घर वालों को साथ में रहना है भाई, 4 लोग हैं हम, 4 लोगों को साथ में रहना है, एंड वी ऑल वांट डिफरेंट हाउसेज। तो यू विल बाय इट कंसेक्यूटिवली, राइट? यस, यस, यस। So here the memory that you require is consecutive. So the thing here is that I wanted to say is array is nothing but consecutive memory locations where you can store something similar. Are we guys clear? Are we guys clear? आभास आपको क्लियर हुआ क्या? I hope it is clear. I hope it is clear. I hope it is clear. Cool है, awesome. Cool. तो अरे क्लियर है, 2D अरे भी क्लियर हो गया, टी अरे यूज कहाँ पे था? आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। आर वी गाइस क्लियर? डन है? शुड वी मूव? शुड वी मूव? आगे बढ़े? आगे बढ़े? Cool. बढ़ते हैं। So the point number two is let's talk about one another data structure, and that data structure is called stack. एक और डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, एंड दैट डेटा स्ट्रक्चर इज स्टैक। तो स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर जिसको हमने भी बहुत बार रियल लाइफ में देखा है, लाइक स्टैक ऑफ प्लेट्स। हाउ मेनी ऑफ यू सीन दिस स्टैक ऑफ प्लेट्स? किसने देखा है स्टैक ऑफ प्लेट्स को? आई थिंक काफी लोगों ने देखा होगा। यस, नो, राइट, देयर आर स्टैक, राइट, स्टैक। शादियों में जाते थे, हैव यू गाइस सीन स्टैक ऑफ चेयर्स? एक चेयर के ऊपर एक और चेयर, फिर उसके ऊपर एक और चेयर, फिर उसके ऊपर एक और चेयर, फिर उसके ऊपर एक और चेयर। हैव यू गाइस सीन दैट? हैव यू गाइस सीन दैट? So this is stack of chair. This is nothing but stack of plates. What else? What else? What else? रोटीज, स्टैक ऑफ रोटीज। रोटी एक के ऊपर एक होती है, राइट, राइट, राइट। हैव यू गाइस सीन दैट? टिफिन का डब्बा, राइट। Cool, cool, cool. So these are stack. And can you tell me what is the property of stack? प्रॉपर्टी ऑफ स्टैक क्या है यहाँ पे, कि अगर चेयर, बहुत सारी चेयर्स रखी हैं, आई कैन पिक ओनली द टॉप मोस्ट चेयर। करेक्ट, स्टैक ऑफ बुक्स कैन ऑल्सो बी देयर। बट प्रॉपर्टी क्या है स्टैक की, सोचो। प्रॉपर्टी क्या है स्टैक की, सोचो। स्टैक की प्रॉपर्टी है, स्टैक की प्रॉपर्टी है, स्टैक की प्रॉपर्टी है कि आई कैन पुट ओनली द टॉप मोस्ट एलिमेंट, एंड इफ आई वांटेड टू पुट दैट बैक आई विल ऑलवेज बी पुटिंग इट ऑन टॉप, राइट? कि अगर मान लो यहाँ पे बहुत सारी चेयर्स है, तो जो सबसे पहले आप चेयर निकालोगे वो सबसे टॉप वाली चेयर निकालोगे, और जो सबसे पहले डालोगे वो भी कौन सी डालोगे? सबसे टॉप पे डालोगे। So such type of data structure is called LIFO structure. What it is called? This type of data structure is called LIFO structure. What is LIFO?
लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट, कि जो सबसे लास्ट में आएगा ना, सबसे ऊपर, अब सोचो ये सबसे लास्ट में आई एक चेयर, तो सबसे पहले यही निकलेगी, राइट। नहीं नहीं भाई, फर्स्ट इन लास्ट आउट भी बोल सकते हैं, इट्स सेम थिंग, राइट। तो सोचो कि जैसे आपके पास प्लेट्स हैं या फिर बुक्स हैं, मान लेते हैं। सो यू हैव बुक वन, you have book one, you guys have book two, you guys have book three, right? Now think about it. Let's say there is this book four. This book four will be here, and this is last in. Do we agree? सबसे लास्ट में आई है बुक फोर, यस नो? सबसे लास्ट में आई है बुक फोर, यस नो? जल्दी से बता दो भाई। And this book four, and this book four is last in and will be first out. Can I say this? Can I say this? So this book is nothing but a LIFO structure. So this book is nothing but a LIFO structure, which is last in, first out. Do we agree? Yes, no? Answer is yes, it's a LIFO structure, right? Now can you tell me where I can use this LIFO structure? It has very, very awesome use. You can't even imagine. आप रोज यूज करते हो this LIFO structure को. Can you think where this LIFO structure is used? Can you give me some examples? कोई एग्जाम्पल दोगे क्या LIFO structure का? कोई एग्जाम्पल दोगे क्या LIFO structure का? Plates in marriages, okay. Okay, books, okay. Standing in queue, okay. Right, right, right. Have you guys used browser? Browser देखा है क्या? Let me show it. Let me show it. Let me show you browser. ये ब्राउजर देखा है सबने, है ना? यस। यहाँ पे मैं लेट से एक वेबसाइट खोलता हूँ, लेट से google.com, राइट। और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ लेट से एबीसी, फिर उसके बाद मैं सर्च करता हूँ बिट्टू, उसके बाद ओके, स्क्रीन इज नॉट शेयर्ड, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, लेट मी शेयर इट अगेन। देखो उसके बाद लेट मी डू इट अगेन। सो सबसे पहले जाता हूँ google.com पे, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ बिट्टू, ठीक है। सो समथिंग इज कमिंग, बिट्टू स्टेशनरी फलाना ढिंगाना, लेट मी सर्च बिट्टू अग्रवाल, आई होप आई विल कम, ओके आई एम हियर। राइट, फिर उसके बाद लेट सर्च गीकस्टर, राइट। तो आई हैव सर्च मल्टीपल थिंग, बट कैन डू यू नो आई कैन गो बैक, दिख रहा है क्या गोइंग बैक फीचर? कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? If I go back, I'll back to my first page. If I go back again, I'll come back to my first page. If I go back again, I'm back. So can you see what structure can be used? So it's nothing but a stack. So सबसे पहले आपने google.com search किया. Do we agree? Then you guys have searched Bittu. Then you guys have searched Bittu Agarwal. Then you guys have searched Geekster. Do we agree? Do we agree? It can be, right, but it can be stack as well. Think about it, you can use stack here as well. So the topmost element is always your current element, जो आपको वहां पे दिखाई देगी वेबसाइट स्क्रीन पे. So when you put the back, what can happen? This geekster will pop out and the topmost is now Bittu Agarwal. Do we agree? Do we agree?
डू वी एग्री? यस, नो, नो? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? लेट्स से यू अगेन प्रेस बैक, यू विल अगेन यू प्रेस बैक, तो गिक्सर को हटा के क्या आ जाएगा? बिट्टू अग्रवाल आ जाएगा। बिट्टू अग्रवाल को भी हटाओगे, अगर बिट्टू को पॉप करोगे तो क्या आ जाएगा? गूगल आ जाएगा। नाउ अगेन यू विल सर्च समथिंग, लेट्स से आफ्टर कमिंग टू गूगल अगेन आई सर्च let's say Facebook. So now Facebook will be on top, right? Do we agree? Think about it. Yes. अब मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे if I'll search Facebook, see what will happen. अब मैं Facebook पे आ गया, अब मैं बैक जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? अब मैं बैक जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? वापस से गूगल पे, राइट? तो जब मैं फेसबुक से बैक गया तो क्या हुआ? ये फेसबुक पॉप हो गया। आर वी गाइस गेटिंग इट? Are we guys getting it? So somebody was saying कि it can be done using doubly linked list. So doubly linked list will be a bit problematic here because I'll not be able to implement this feature. Are we guys clear? Are we guys clear? Yes, no? I hope it is clear. So this is where your stack is used. So there are few more example where stack is used, right? So एक और example अगर लूँ stack कहाँ पे use होता है, तो it's control C and control V. Have you guys seen this? Have you guys seen this? राइट? किसी भी टेक्स्ट एडिटर में इट कैन बी यूज्ड, किसी भी टेक्स्ट एडिटर में इट कैन बी यूज्ड। डू वी एग्री? तो टेक्स्ट एडिटर में पहले आपने ए लिखा, तो क्या होगा? स्टैक के अंदर एक ऑपरेशन चला जाएगा, ए इज एडेड। फिर आपने बी लिखा, स्टैक में ऑपरेशन चला जाएगा, बी इज एडेड। सी लिखा, ऑपरेशन चला जाएगा, सी इज एडेड। नाउ लेट्स से यू प्रेस कमांड जेड, या सॉरी यू नॉट कमांड, ओके सॉरी, व्हाट आई एम राइटिंग हियर, सॉरी। So I was talking about undo operation, which is control plus Z. So if you P plus control Z, what will happen? Sorry, sorry, my mistake. So I meant undo operation, control Z, right? Now let's say you press control Z. Can you tell me what will happen? Can you tell me what will happen? Can you tell me what will happen? C will be erased. Or think about it. This operation is nothing but operation was C was added. So when you are removing it, what you will do? You will remove C na. Are you guys getting it? So basis of it, you can remove the C. On basis of it, you can remove the C. Are we guys clear? Are we guys clear? I hope it is clear. फिर उसके बाद अगर आपको B again if you press Control C, sorry, when you again press Control Z, what will happen? दोबारा से Control Z press करोगे क्या होगा? It will again pop this operation which is adding B, and since this operation B is done, it so we'll remove this B and your text editor will only show A. So for this Control Z option, what is used? What is used? What is being used? Yes, no? What is being used? Guys, what is used to implement this Control Z undo option? क्या use होता है undo option के लिए? क्या use होता है? stack use होता है। Are we guys clear? Are we guys clear? कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई इशू? तो कभी भी कुछ भी कोई डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, वन थिंग दैट वी रियली हैव टू डू इज व्हाट? जस्ट ट्राई टू थिंक ये डेटा स्ट्रक्चर यूज कहाँ पे होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? यस, नो?
हर बार ये सोचो कि अगर कोई भी डेटा स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ तो उसको यूज कहाँ पे कर सकता हूँ, और कहाँ पे यूज कर सकता हूँ, और कहाँ पे यूज कर सकता हूँ. सी रिसेंटली आई जस्ट गिव यू वन मोर एग्जांपल. तो रिसेंटली आई वाज टेकिंग लॉट ऑफ इंटरव्यूज, मतलब ऐसा डेली के एक दो इंटरव्यूज में लेता ही रहता था. एंड व्हेन आई यूज्ड टू आस्क कि भाई, ओके यू नो स्टैक, ही यूज्ड टू से यस. I used to ask, do you know heap, priority queue? They used to say yes. Then I used to ask, hey, can you tell me where these things are used? Can you tell me where these things are used? भाई, they had no words, right? मतलब उन्हें पता ही नहीं है भाई कहाँ पे, क्यों, कैसे, क्या, मतलब they knew nothing. So this is the problem, right? So whenever whatever you are learning, make sure you understand the use case of this as well. Are we guys clear? Are we guys clear? Yes, yes, yes. Are we guys clear? So again, one more question, same poll. How's the Josh? How's the Josh? Is it high? Is it low? What is the scenario, guys? How's the Josh? So I'll keep on asking the same question, right? For now, I'll be keep asking the same question and you have to answer. As high as me, sir. Okay, awesome. On fire. Awesome, Smitesh. What about others? भाई ये लोग कम होते क्यों जा रहे हैं? So I can see 106 students only. Same as before. Awesome, awesome, awesome. Harshit is saying cool dude. Okay. Full Josh is full. Okay. I can see only 50 people are actually properly listening. Right. But it's fine, right? तो यार मतलब ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजें सब लोग मतलब नहीं कर सकते ग्रास्प. इट्स फाइन, राइट? बट दोज हु आर डूइंग इट, जस्ट लाइक इफ यू रियली वांटेड टू डू इट एनीथिंग, डू इट विद योर हार्ट, राइट? कि ऐसा करो कि कोई और ना कर सके, राइट? तो वही चीज है. चलो कूल है, ऑसम. शुड वी कंटिन्यू? शुड वी कंटिन्यू? मजा आ रहा है तो कंटिन्यू करें. ओके, लकी सोनी कह रहा मेरा मैसेज भी तो पढ़ लो. भाई मैं पढ़ रहा हूँ भाई. सबका मैसेज पढ़ रहा हूँ यार. कूल है, ऑसम. कूल. शुड वी कंटिन्यू? शुड वी कंटिन्यू? यस, नो? जल्दी से चैट में थोड़ी सी एनर्जी के साथ बोल दो, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं और दो चार डेटा स्ट्रक्चर को देखते हैं. और फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे और कुछ समझेंगे कि इसको किस डेटा स्ट्रक्चर के साथ सॉल्व किया जा सकता है. आर वी गाइस क्लियर? आर वी गाइस क्लियर? चलो मूव करते हैं. अच्छा, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है क्यू. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड क्यू? किस किसने देखा है क्यू डेटा स्ट्रक्चर को? इंप्लीमेंट वाला पार्ट नेक्स्ट में करवाते हैं भाई. पक्का करवाते हैं. सुना है कहीं तो? ओके. अरे यार, क्यू तो सुना ही होगा. नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर नहीं बताओगे तो वर्ड सुना होगा. सुना है क्या? क्यू वर्ड तो सुना होगा. लाइन भाई. जब नोटबंदी हुई थी, मोदी जी ने नोटबंदी की थी, तो कहाँ पे खड़े होते थे? क्यू के अंदर भाई, लाइन में खड़े होते थे. राइट. राइट. हाँ, जब घर के बाहर किसी मंदिर में भंडारा लगा होता है तो क्या क्या कैसे खड़े होते हो? जब घर के बाहर भंडारा लगा होता है कैसे खड़े होते हो? लाइन में खड़े होते हो भाई, क्यू में खड़े होते हो. राइट. तो जब लाइन बोलते हो तो लाइन इज टू मिडिल क्लास. राइट. तो ट्राई टू स्पीक लाइक मोर क्लासी लैंग्वेज, दिस इज क्यू. राइट. कुछ भी नहीं है, लाइन ही है. लाइन की थोड़ी क्लासी, लाइन को थोड़ी क्लासी लैंग्वेज में क्यू बोल देते हैं. राइट. यार मैं तो, मुझे तो बहुत पसंद है भंडारा. मैं तो जाके खड़ा हो जाता हूँ भाई. आई लिस्ट ऑफ डाटा इन. ओके, राइट. तो क्यू में क्या होता है, सोचो. एटीएम की लाइन है, तो एटीएम की लाइन में क्या होता है? एक बंदा खड़ा हुआ है, एक और बंदा आएगा, एक और बंदा आएगा, एक और बंदा आएगा. तो एक बात बताओ कि सबसे पहले जो बंदा आया है वही सबसे पहले बाहर भी जाएगा. डू वी अग्री? डू वी अग्री? इस स्ट्रक्चर के अंदर जो भी सबसे पहले आया है वही सबसे पहले जाएगा. डू वी अग्री? यस, नो?
So in computer science as well, this thing is called as FIFO, first in, first out. Are you guys getting it? Are you guys getting it? Yes, no. So such structure, you can say such structure is called FIFO, first in, first out. Right. अब इसका भी एग्जाम्पल सोचते हैं कि भाई ये यूज कहाँ पे होता है, where this FIFO structure is used, where this FIFO structure is used. Correct. Very similar to first come first serve. Very awesome. दीपक इज सेइंग कि भाई आपने स्पॉटिफाई यूज किया है क्या? स्पॉटिफाई के अंदर आप प्लेलिस्ट चलाते हो, तो एवरी सॉन्ग इज प्लेड, like every song is put it into queue, and whatever being on the top, whatever being you added first, actually being played first. Do we agree? Do we agree? Do we agree? Yes, no? Cool. What else? What else? So one of this example, so have you seen computer? Have you seen computer? And a computer being connected to multiple, uh, a computer being connected to multiple devices. Have you seen this? कि भाई ये बहुत सारे प्रिंटर से कनेक्टेड है, लेट से, या फिर इसको उल्टा बोलते हैं, आई थिंक मैंने उल्टा बोल रहा हूँ, तो लेट मी रीराइट इट. तो हैव यू सीन लॉट ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू सिंगल प्रिंटर. बहुत सारे कंप्यूटर हैं, एंड ऑल दीज कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू सिंपल कंप्यूटर. हैव यू सीन दिस? किस किसने इसको देखा है? सॉरी, प्रिंटर, प्रिंटर कैसे बनाऊं? प्रिंटर, राइट. तो एक कंप्यूटर ने कमांड दी, दूसरे कंप्यूटर ने कमांड दी, तीसरे कंप्यूटर ने कमांड दी, चौथे कंप्यूटर ने कमांड दी, और लेट से एक साथ दे दी. तो ये प्रिंटर कैसे समझेगा कि कौन सा प्रिंट करना है सबसे पहले? सो दिस प्रिंटर कैन मेंटेन वन क्यू. This printer can maintain one queue, which is how it will store instruction 1 first, then it will store instruction 2, then it will store instruction 3, then it will store instruction 4. तो सबसे पहले instruction 1 को execute करेगा. Do we agree? Do we agree? Do we agree? फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन 2 को करेगा, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन 3 को करेगा, और फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन 4 को करेगा. आर वी गाइस गेटिंग इट? आर वी गाइस गेटिंग इट? So here you can see one queue is maintained. Are we guys clear? Are we guys clear? Okay, I'll take few more examples. कुछ एक और डेटा सिस्टम के बारे में बात करेंगे, एंड देन विल ट्राई टू हैव वन जस्ट चेक फ्यू प्रॉब्लम्स, एंड विल ट्राई टू सी कि वो प्रॉब्लम कैसे बेटर तरीके से सॉल्व की जा सकती है. आर वी गाइस गेटिंग इट? आर वी गाइस गेटिंग इट? कूल है. सो लेट्स टेक वन मोर डेटा स्ट्रक्चर, एंड डेटा स्ट्रक्चर इज ट्री. किस किसने ट्री को देखा है? किस किसने ट्री डेटा स्ट्रक्चर को देखा है? किस किसने ट्री डेटा स्ट्रक्चर को देखा है? अभय ने देखा है. ऑसम. तो कुछ जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है कि देयर इज वन रूट नोड, देयर इज वन रूट, एंड आफ्टर दिस रूट, अच्छा इसको नॉर्मल उल्टा बनाते हैं. तो ट्री किसी ने देखा है क्या? नॉर्मल ट्री, ट्री कैसा होता है? ट्री ऐसा होता है कि नीचे रूट्स होती हैं बहुत सारी, फिर उसके बाद बहुत सारी ब्रांचेस होती है. डू वी अग्री? फिर ब्रांचेस के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, फिर उन ब्रांचेस के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं. तो दिस होल बिकम्स ट्री. डू वी अग्री? डू वी अग्री? अब कुछ नहीं करना, कंप्यूटर साइंस में ट्री जो है ना वो उल्टा होता है. बस कंप्यूटर साइंस में जो ट्री होता है वो उल्टा होता है. कैसा होता है?
कैसा होता है ट्री? उल्टा होता है। उल्टा बोले तो? उल्टा बोले तो? करेक्ट। उल्टा बोले तो जो ट्री होता है कंप्यूटर साइंस में, उसमें रूट सबसे ऊपर होता है। उसमें रूट सबसे ऊपर होता है, और फिर उसके नीचे क्या होता है? उसके नीचे मल्टीपल ब्रांचेस होती है। कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? और जो लास्ट नोड होती है उनको लीफ नोड बोलते हैं, क्योंकि लीफ के आगे तो कुछ जा ही नहीं सकता ना। राइट? राइट? करेक्ट, नेटवर्क मार्केटिंग, नाइस। राइट, राइट, लाइक दैट, लाइक दैट। नाउ कैन यू टेल मी वेयर दिस टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड? Can you tell me where this data structure, where this data structure can be used? In office, correct? ऑफिस में यूज कर सकते हैं। कैसे करोगे दीपक ऑफिस में? कैसे यूज करोगे ऑफिस में? क्या हम ऑफिस हायरार्की को दिखाने के लिए ये यूज कर सकते हैं? क्या ये ऑफिस हायरार्की को दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या है? सबसे पहले सीईओ है, फिर उसके बाद मान लेते हैं सीटीओ है, सीएमओ है, सीएफओ है, सीएचआरओ है, समथिंग लाइक दैट। फिर इसके अंदर कुछ मैनेजर्स हैं, M1, M2, M3, समथिंग लाइक दैट। राइट? इस इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए क्या यूज होगा? कभी भी मुझे इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होगी तो क्या यूज करूंगा? कभी भी ये इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होगी तो क्या यूज करूंगा? आई विल यूज ट्री। डू वी एग्री? अच्छा, आपको पता है ये जो ट्री स्ट्रक्चर है ना, ये ऑलरेडी यूज होता है। पता है कहाँ पे यूज होता है? डू यू नो वेयर दिस डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड? दिस डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन फाइल मैनेजर। करेक्ट। कभी अपना माई कंप्यूटर देखा है? माई कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? सी ड्राइव होती है। यस, नो? माई कंप्यूटर फोल्डर आपके लैपटॉप पे, यहाँ पे एक माई कंप्यूटर करके फोल्डर होता है। उस फोल्डर को क्लिक करते हो तो क्या होता है? सी ड्राइव होती है, उसके अंदर डी ड्राइव होती है, ई ड्राइव होती है। डू वी एग्री? डू वी एग्री? सी ड्राइव के अंदर क्या होता है? मे बी कुछ विंडोज से रिलेटेड फोल्डर्स हैं, कुछ और तरीके के रिलेटेड फोल्डर्स हैं, कुछ गेम्स के फोल्डर्स हैं जो आपने इंस्टॉल की होंगी, कुछ एप्लीकेशंस के फोल्डर हैं। राइट? डू वी एग्री? डू वी एग्री? सिमिलरली डी में आपने मूवीज बना के रखी होंगी, सॉन्ग्स से बना के रखे होंगे, मैं तो ये रखता था पहले। राइट? ई में आपका कोई स्टडी मटेरियल होगा, उसके अंदर एक और स्टडी मटेरियल होगा। सो सच थिंग विल बी देयर। राइट? सो थिंक अबाउट इट, हाउ दिस डेटा इज स्टोर्ड। थिंक अबाउट इट, हाउ दिस डेटा इज स्टोर्ड। थिंक अबाउट इट, हाउ दिस डेटा इज स्टोर्ड। एनीबडी? कैसे स्टोर होगा ये डेटा? लेट मी गिव यू फोर एग्जांपल्स। लेट मी गिव यू फोर एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल ट्री, दूसरा एग्जांपल ट्री, तीसरा एग्जांपल ट्री, फोर्थ एग्जांपल ट्री। कौन सा ऑप्शन ठीक है? कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज होगा? कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज होगा? जल्दी से बताओ यार, ये तो इतना इजी है यार, इसमें भी गलती करोगे क्या? जल्दी बताओ, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा? 4 नंबर वाला ट्री। ओके, so the data structure that we'll going to use here is nothing but tree. Are we guys clear? Are we guys clear? Are we guys clear? Yes, no? सबको क्लियर है? कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई इशू? I hope no doubts, no issues, no concern. Yes, no? ठीक है?
कूल है। डू यू वांटेड टू नो मोर एग्जांपल्स? और एग्जांपल जानने हैं क्या? और एग्जांपल जानने हैं क्या? दीपक कह रहा है यस, जेनिथ कह रहा है यस। ओके ओके सर, मोर एग्जांपल। अच्छा कितने नंबर बताओ पहले, कितने नंबर बताओ? 100? अरे दीपक क्या करें, यहीं बैठे रहे क्या रात भर? गुनगुन इज सेइंग 4। बबल शॉट भी होता है भाई, बबल शॉट भी होता है। ओके 5। ओके, क्वेश्चन सॉल्विंग करेक्ट। लेट्स ट्राई टू डू फ्यू थिंग्स। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ ना, आई ट्राई टू मतलब गिव यू एज अ क्वेश्चन एंड यू गाइस हैव टू टेल मी कि उसका आंसर क्या होगा। कैन वी डू दिस? कैन वी डू दिस? ये करें? तो आई विल गिव यू सम situations and you have to tell me in this situation what data structure will be used. Can we do this? Yes, no? जल्दी से बताओ। Which data structure will be used? ठीक है, ठीक है। अच्छा तो ना यहाँ पे एक प्लेन है मान लो, ठीक है? क्या है? क्या है? प्लेन है। यस, यस, नो? ठीक है। अब इस प्लेन के आगे ना कई सारे लोग खड़े हुए हैं। देर इज अ प्लेन एंड there is one queue here where so many people are standing, right? Let's say the one person is Amit Shah. Let's say the one person is Arvind Kejriwal. Let's say the one person is Rahul Gandhi, right? And now suddenly Modi ji comes. Can you guys tell me which one person will onboard this flight first? ये फ्लाइट कौन ऑनबोर्ड करेंगे सबसे पहले? ये कौन करेंगे जल्दी बताओ? अमित जी, मोदी जी? भाई देखो, भाई अमित शाह चाहे कुछ भी होगा, मोदी जी मोदी है, मोदी जी है। डू वी एग्री? डू वी एग्री? डू वी एग्री? भाई मोदी जी विल बी हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी। ऑल्दो यहाँ पे एक क्यू है, ऑल्दो देर हेयर वी हैव वन क्यू, बट हेयर मतलब दिस क्यू विल नॉट बी फॉलोड कि भाई जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, ये नहीं सिस्टम होगा। डू वी एग्री? डू वी एग्री? पहले आएगा वो पहले जाएगा, ये सिस्टम नहीं होगा भाई। यहाँ पे जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई होगी वो सबसे पहले जाएगा। डू वी एग्री? राइट? डू वी एग्री? डू वी एग्री? तो यहाँ पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा जल्दी से बताओ? यहाँ पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा? प्रिया सिंह ट्री। ओके, ट्री कैसे यूज होगा? हायरार्की के लिए? मे बी, यस। नाइस आंसर, नाइस आंसर है प्रिया। रियली लाइक द आंसर एक्चुअली। राइट, ओके। so one thing can be priority queue, right? Which we have not studied, but I really like the answer what Priya gave. Sir, priority queue use कर लो, tree use कर लो, right? Can we use tree? Tree can be used की, कैन आई से दिस कि भाई सबसे पहले तो भाई मोदी जी आएंगे तो क्योंकि वो पीएम है, फिर उसके बाद उनके सारे कैबिनेट मिनिस्टर आएंगे, फिर उसके बाद सारे सीएम्स आएंगे। कैन आई से दिस? यस, 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 यस। दिशा इसके सेइंग भाई ट्री कैन नॉट बी यूज्ड। ओके, करेक्ट। राइट। पर इसमें दिक्कत क्या होगी ये समझते हैं।
दिक्कत ये होगी कि मान लो मैं जानना चाहता हूं कि भाई अमित शाह की प्रायोरिटी क्या है, तो मुझे ये मैप लगेगा, ये ट्री लगेगा, राइट? यस, नो? मुझे ट्री लगेगा टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ अमित शाह। मुझे ट्री लगेगा टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ मोदी जी। मुझे ट्री लगेगा कि व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ राहुल गांधी। डू वी अग्री? सो दिस ट्री विल प्ले अ सपोर्टिंग रोल हेयर। डू वी गाइस अग्री? समझ में आ रही है ये बात? ये जो ट्री है ये सपोर्टिंग रोल प्ले करेगा टू अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। बट अल्टीमेटली कौन ऑन बोर्ड करेगा सबसे पहले? दैट प्रायोरिटी क्यू विल बी एबल टू गिव मी द बेटर आंसर। आई होप दिस मेक सेंस, बट नाइस थॉट, नाइस थॉट। आर वी गाइस क्लियर? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? शुड वी मूव, शुड वी मूव? आगे बढ़े? यस, नो? आगे बढ़े? यस, नो? जल्दी बताओ। Yes, yes, you can say priority queue is a part of queue where the person who will be having the highest priority will go first. Cool. आगे बढ़े? एक और प्रॉब्लम ले जल्दी से, एक और प्रॉब्लम ले। सॉरी। अच्छा, आप किस किसने फोन बुक देखी है? मतलब आपके आपके मोबाइल में जाओगे और मोबाइल में फोन बुक देखी है क्या? दिखा देता हूँ जिसने नहीं देखी है। फोन मोबाइल कुछ ऐसी दिखती है भाई, दिखाता हूँ इमेज में। कुछ ऐसी दिखती है फोन बुक। हैव यू गाइस सीन दिस? किस किसने देखी है फोन बुक? यस, नो? ऐसी दिखती है कुछ, कुछ ऐसी दिखती है। हाउ मेनी ऑफ सीन दिस? तो यहाँ पे बहुत सारे नाम होते हैं। डू वी अग्री? यस, नो? So can you tell me, if I have to store this data, what data structure I will use? If I have to store this data, what data structure I will use? स्टैक यार, हर चीज के लिए स्टैक में बोला करो यार, प्रॉब्लम है स्टैक। व्हाट डेटा स्ट्रक्चर आई कैन यूज? कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे? राइट, सो द डेटा स्ट्रक्चर दैट वी कैन यूज, मे बी अरे, अरे यूज कर सकते हैं। बिकॉज थिंक अबाउट इट, दिस इज नथिंग बट लाइन, राइट? लाइन में है एक 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 लोग हैं, सो मे बी वी कैन यूज डेटा स्ट्रक्चर। पर हेयर वी वांट द थिंग्स टू बी इन सॉर्टेड, राइट? मतलब अगर फोन बुक देखोगे तो यू विल फाइंड दैट फर्स्ट ऑल द ए, लाइक the name starting from A will come, then all the names starting with B will come, then name like all the things starting from C will come. Do we agree? Yes, no? So maybe we can store array plus sorting, कि भाई array यूज कर लो पर उसको sorted रखो, can be used, right? Do we agree? Do we agree? Do we agree? But the problem here is, let's say you wanted to search something, अगर कुछ search करना है तो वो कैसे करोगे? If you wanted to search something, how will you do that? How will you do that? लीनियर सर्च लगाओगे भाई? सॉर्टेड है, बाइनरी सर्च लगाओगे ना, राइट? ये भी काम हो जाएगा। लेट्स से यू हैव टू ऐड एनीथिंग, हाउ विल यू डू दैट? अगर कुछ ऐड करना है तो कैसे करोगे? ऐड करना है तो कैसे करोगे? इंसर्शन सॉर्ट, ओके, नॉट ग्रेट वे बट ओके।
So think about it, adding will be a problem. First you will add one name और फिर उसके बाद दोबारा से sort करोगे क्या हर बार? नहीं. So you need some better data structure to store this. Are we guys getting it? Are we guys getting it? So I'm not going ahead, but to implement this, you can use multiple data structure. One is called trie, one is called tree map. एक बार इसको अगर आप जावा में कोड करते हो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस ट्री मैप इज. बट अगर आप सी प्लस प्लस अगर आप जानते हो, राइट, तो जस्ट सर्च फॉर ऑर्डर्ड मैप. तो एक बार इसको सर्च करना है, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग लाइक हाउ यू कैन यूज इट. कूल है. आर वी गाइस गुड? आर वी गाइस गुड? एक जस्ट लास्ट एग्जांपल लेते हैं और फिर उसके बाद इसको खत्म करते हैं. द लास्ट एग्जांपल इज मान लेते हैं कि एक लाइब्रेरी है, राइट, और उस लाइब्रेरी में मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक. ए ब्लॉक के अंदर मल्टीपल मतलब क्या नाम है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स की बुक्स रखी हुई हैं, और फिर उसके अंदर बुक्स रखी हुई हैं, बुक 1, बुक 2, बुक 3. अब इस डेटा स्ट्रक्चर को स्टोर करना है, तो कैसे स्टोर करोगे? हाउ विल यू स्टोर दिस डेटा स्ट्रक्चर? भाई देखिए क्या भाई, ट्री है, राइट 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 राइट. बट एक छोटा सा ट्विस्ट, ट्री में आपको अब आपको किसी भी बुक के लिए बोला जा सकता है ना कि मुझे ये बुक सर्च करके दो. हाउ विल यू सर्च दैट बुक? हाउ विल यू सर्च दैट बुक? देखो ट्री यूज करेंगे, दैट इज फाइन, राइट. क्या आपके पास लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी है. फिर उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3. देखो ट्री के अंदर ये सर्चिंग एल्गोरिथम्स नहीं लगेंगी, तो नो वे. फिर यहाँ पे बुक 1, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं ट्री को. पर सोचना ये है कि अगर हम ट्री को यूज भी कर लेंगे, बट वन थिंग आई विल बी रिक्वायरिंग सर्चिंग, कि मुझे किसी ने बुक दी, उसने बोला कि लेट्स से फिजिक्स की कौन सी फेमस बुक थी यार, वो फिजिक्स की 11th 12th वाली, एच सी वर्मा. तो किसी ने बोला कि फिजिक्स की एच सी वर्मा मुझे बताओ कि कहाँ पे रखी है. यू वांटेड टू फाइंड दैट. हाउ विल यू फाइंड दैट? इन ट्री इट विल बिकम अ प्रॉब्लम. तो कई बार आप ऐसे डिसीजन नहीं लेते कि भाई आपको जो सर्च कर, मतलब जिस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है आपने वैसा का वैसा इंप्लीमेंट कर दिया, बट यू थिंक कि क्या क्या फंक्शनैलिटी, क्या क्या ऑपरेशन आपको रिक्वायर्ड है, ऑन दैट बेसिस यू डू, ऑन दैट बेसिस यू मेक व्हाट, डेटा स्ट्रक्चर, ऑन व्हाट दैट बेसिस यू यूज डेटा स्ट्रक्चर्स. आर वी गाइस क्लियर? आर वी गाइस क्लियर? आर वी गाइस क्लियर? तो रोहित कह रहा है कैन वी यूज हैश मैप? यस. सो यहाँ पे हम ट्री और हैश मैप दोनों का मिक्सचर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, तो दैट विल बी यूजफुल. कूल है. फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा लगा सेशन? कैसा लगा सेशन? हाउ वाज द सेशन? कैसा लगा सेशन? कैसा लगा सेशन, जल्दी बताओ. हाउ वाज द सेशन? ओके, मस्त था. कितना मस्त था भाई? लेट मी क्रिएट वन पोल एंड आस्क अगेन. ओके, तो मुझे एक बार जोश से बता दो कि भाई कितना हाई था, मतलब जितना, अगर आज जितना जोश हाई है उस हिसाब से हाउ वाज द सेशन, राइट? सो आई एम रीलॉन्चिंग द पोल. इंटरैक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव, थैंक्स गुनगुन. सो आई हैव रेज द पोल, जल्दी से बता दो कैसा था भाई. अगर अच्छा लगा तो भाई हाई प्लस 3000 ही आना चाहिए. हाई इज नॉट what I'm aiming for. I'm aiming for high plus 3000 and love. Yes. Awesome है भाई. Awesome, awesome, awesome. Got new ideas. Awesome. New applications. Awesome. और even this is to tell you guys कि यार सिर्फ ऐसे मत सोचो कि कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसको सिर्फ पढ़ के छोड़ दिया. Just try to see कि where you can use it. Right. This is the most awesome. कि भाई ये पता लगा लोगे ना कैसे यूज करना है ना भाई, तुम्हें मजा आएगा उस चीज को पढ़ने में. You'll feel कि क्या ही awesome चीज है दुनिया में. Right. Hash include high plus h. Awesome.
कूल है, कूल है, कूल है। सो एट गीकस्टर एक्चुअली वी बिलीव इन दिस थ्योरी कि देखो, दो चीज की थ्योरी में हम गीकस्टर में बिलीव करते हैं कि एक तो सारी चीजों के प्रैक्टिकल यूज आपको पता होनी चाहिए, और द सेकंड थिंग इज टास्क बेस्ड लर्निंग। We always try कि whatever we are learning, we are solving lot and lot of tasks while doing that. मतलब थैंक्स, राइट। तो ये चीज हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई शो यू, तो हमारे जो कोर्सेज भी हैं वो तो इसी हिसाब से बने हुए हैं कि उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम टास्क है, सो दैट यू कैन गेट द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन थिंग, राइट। कि आपको इम्प्लीमेंटेशन बहुत क्लियर हो जाए। आई थिंक वी हैव फ्यू स्टूडेंट हेयर एज वेल जो आई थिंक इस बात को अग्री करेंगे। आई थिंक फ्यू स्टूडेंट फ्रॉम वेब, फ्यू स्टूडेंट फ्रॉम आर स्प्रिंग बूट बैच एज वेल, राइट। तो okay, I think there are multiple questions ki where I can learn DSA from beginner. I can see few private messages they are asking I wanted to learn MERN stack. Okay. So I can see there are multiple questions around it. So for that I think we have our own course. So for that I think you guys can visit our website. तो हमारे विजिट वेबसाइट पे काफी छोटे छोटे कोर्सेज विजिट मतलब हैं। और वन ऑफ द बेस्ट पार्ट अबाउट इट कि सारे के सारे कोर्सेज आपको ऐसे एनरोल नहीं करने। You will be getting the free trial before enrolling any course. तो पहले what we do, तो सबसे पहले we make sure कि आप एक बार सारी चीजों को समझ लें, राइट, सारी चीजों को देख लें। एंड इफ यू फील कि हाँ भाई आपको समझ में आ रहा है चीजें, आपको हमारी मेथोडोलॉजी समझ में आ रही है, पेडागोजी समझ में आ रही है, देन ओनली वी वांट यू टू एनरोल, राइट। सो देर आर मल्टीपल वे टू लर्न। देर आर लाइक अगर आपको लग रहा है कि आप मोटिवेटेड हो, बहुत ज्यादा खुद से पढ़ लोगे, तो यूट्यूब इज द बेस्ट वे टू लर्न। बट इफ यू फील कि यार मतलब यार मेरे से ना वो डेली डेली पढ़ा नहीं जाता, आई नीड वन पुश फ्रॉम समवेयर, राइट, आई नीड वन स्ट्रक्चर। आई नीड कि भाई कोई मुझे बताता रहे कि ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, मेरी डेली क्लासेस हो, जिससे कि मेरी परसिवरेंस बने, मेरी क्यूरोसिटी बने, देर इज वन मेंटर अराउंड मी जो मुझे बता सके ऐसे पढ़, ऐसे पढ़। So for that, you guys can join Geekster, right? Geekster के एक बार पेज पे जाके देखो, you will find few good results. Are you guys clear? तो Geekster की वेबसाइट आई थिंक सबको पता ही होगी, geekster.in है। Many people are asking what is my name. Oh, I just forget to introduce myself. So my name is Bittu Agarwal. I used to work with Amazon before, but now I'm full time working with Geekster. राइट। तो गीक्सर में हम लर्निंग को बहुत ही औसम बनाने की कोशिश कर रहे हैं विद सच एग्जांपल्स दैट यू हैव सीन टुडे। तो यही हम करते हैं। और गीक्सर में अगर आपको कुछ और डाउट है, कोई इशू है, तो व्हाट यू गाइस कैन डू, यू कैन फिल वन फॉर्म, आई कैन रेज वन फॉर्म हियर जहाँ पे यू कैन टेल मी व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, एंड ऑल्सो यू गाइस कैन टेल मी इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड वी विल रीच आउट टू यू। इज इट फाइन? इज इट फाइन? Should I share one form? Yes. Okay, अभय कह रहा है मेरा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है जल्दी से? कैन वी आस्क यू क्वेश्चंस? अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो फील फ्री टू आस्क इट। जल्दी से पूछ लो, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो। यार डेटा साइंस का अभी कोर्स अवेलेबल नहीं है, मे बी इन फ्यूचर वी विल बी डूइंग दैट। दीपक इज सेइंग अनम्यूट। या दीपक चैट में लिख दो, आई थिंक इफ आई विल बी अनम्यूटिंग तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, बट चैट में लिख दो आई थिंक वट एवर डाउट यू हैव। ओके, डू हैव डाउट्स? कोई और डाउट, कोई प्रॉब्लम? अबे आई से यस। देखो मैनी पीपल विल से कि भाई डीएसए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर डीएसए इन जनरल इंपॉर्टेंट होता है, राइट। क्योंकि इट विल गिव यू द पावर टू डू एनीथिंग यू वांट। एंड मतलब वट एवर यू आर लर्निंग डीएसए, कंप्यूटर साइंस की नॉर्मल में भी कहीं पे भी जा रहे हो, डीएसए इज इंपॉर्टेंट। डीएसए इज बेस्ड ऑन टॉप ऑफ इट यू कैन लर्न वेब डेवलपमेंट, ऑन टॉप ऑफ इट यू कैन लर्न ऐप डेवलपमेंट। डीएसए भी इतना डेप्थ में नहीं कि भाई पूरी दुनिया पढ़ रहे हो, ग्राफ पढ़ रहे हो, ट्राई पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद कुछ भी पढ़ रहे हो, तो इतना डेप्थ में नहीं, पर बेसिक लेवल ऑफ डीएसए शुड बी नोन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अखिल इज आस्किंग आई वांटेड टू बिकम फुल स्टैक डेवलपर कोर्स बट विच लैंग्वेज इज बेटर? देखो डीएसए पढ़ने के लिए देर आर मल्टीपल लैंग्वेज दैट यू कैन यूज। यू कैन यूज जावा, यू कैन यूज पाइथन, यू कैन यूज सी प्लस प्लस। वाई यूज दीज लैंग्वेज? बिकॉज कई बार है ना आपको ना डेटा, जब आप कोड लिखते हो ना, तो आपको बहुत सारे डेटा खुद से इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं। तो अगर आपको ना करना पड़े तो जावा
हैज दिस सपोर्ट कि उसके पास बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर इनबिल्ट है, तो यू कैन डायरेक्टली यूज इट. पाइथन के अंदर बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर इनबिल्ट है, यू कैन यूज इट. पर जावास्क्रिप्ट में वो नहीं है, सी में वो नहीं है. राइट, सो इट्स ऑलवेज बेटर, अगर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो जावा चूज कर लो, पाइथन चूज कर लो, सी प्लस प्लस चूज कर लो. पर जावा, आई ऑलवेज सजेस्ट स्टूडेंट टू यूज जावा, क्योंकि जावा का फिर उसके बाद यूज भी बहुत ज्यादा है. राइट, तो फॉर डीएसए जावा इज बेस्ट. फिर नाउ यू वांट टू डू फुल स्टैक, वो किस में भी कर लो, मर्न में कर लो, फिर उसके बाद देयर इज लैम्प, देयर इज समथिंग एल्स एज वेल, मीन, तो किसी में भी कर लो, दैट इज फाइन. बट डीएसए शुड बी डन इन जावा, आई थिंक. मतलब जावा इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट लैंग्वेज वेयर यू कैन डू डीएसए, क्योंकि उसके रिसोर्सेज भी उतने ज्यादा हैं, कम्युनिटी भी उतनी बड़ी है. तो आई थिंक फॉर डीएसए जावा इज द बेस्ट. हाउ आई कैन एनरोल दिस कोर्स, तो आप एक बार पेज को देख सकते हो एंड यू कैन एनरोल फ्रॉम देयर. गीक्स्टर की वेबसाइट पे जाओ, यू कैन फिल द फॉर्म एंड यू कैन एनरोल देयर. राइट, आई एम शेयरिंग वन फॉर्म, you guys can fill this form ki how was your experience, and it will also give us more idea ki matlab what, how we can improve, right? So I'm sharing this with you guys. So I think form is shared, you guys can fill this form. Are you guys filling this form? Yes, no? Are you guys filling this form? I think the feedback is the most precious thing. अगर आपने enjoy किया तो please भर दो. It will give me motivation as well कि भाई मैंने कैसा पढ़ाया, right? अगर मैंने अच्छा पढ़ाया, it will give me कि हाँ भाई ऐसे पढ़ाते रहे, चीजें चलती रहेंगी, right? So I'm hoping all of you are filling this form. Yes, no? सिंगल है क्या कोई बात? अरे भाई भाई. My name is Bittu Agarwal. My name is Bittu Agarwal. So yes, you can search Bittu Agarwal on Google and you'll find a few good results around about me. Let me also search the same in front of you. But nice pickup line, Umesh. Sure, ping me on LinkedIn. Fine. Hmm. Okay. I hope everybody have filled the form. Yes. Let's end this call. सबने फॉर्म भर दिया क्या? Let's end this call. Yes. If you guys have filled the form. And you guys can find me on LinkedIn as well. Just search Bittu Agarwal, BITTOOAGGARWAL, and we guys can get connected. And you can also fill this form to more about anything you want, right? So cool, cool. Thanks a lot. Thank you. Thanks everyone. Bye, everyone.